happy. So today we are going to begin with the lesson number 10, that is log on to search. So let's begin with this lesson. So what is Scratch? So in this lesson we are going to study about the Scratch. Scratch क्या होता है? Scratch is a drag and drop programming language where programming is done by dragging blocks from the block palette. So ये क्या है? आपका ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे प्रोग्रामिंग कैसे होती है, ड्रैग करके ब्लॉक्स को किससे, ब्लॉक पैलेट से. सो इट इज डिजाइन फॉर चिल्ड्रन एज एन एजुकेशनल टूल. इसको क्या करा गया है, डिजाइन करा गया चिल्ड्रंस के लिए, किसकी तरह, एजुकेशनल टूल की तरह. एंड इट enables children to produce interactive narratives. इससे क्या करते हैं, चिल्ड्रंस इंटरेक्टिव नरेटिव्स प्रोड्यूस करते हैं, एनिमेशंस प्रोड्यूस करते हैं, गेम्स, music and visual arts. So it was developed by a team at MIT Media Lab led by Michael Resnick. So ये किसने डेवलप किया था, MIT Media Lab में डेवलप हुआ था. टीम जो थी MIT Media Lab, उन्होंने किसने करा था, मिशेल रेसनिक ने. Scratch is free and can be accessed using a वेब ब्राउजर. ये बहुत फ्री है, मतलब इसको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता और इसको आप एक्सेस कर सकते हो अपने वेब ब्राउजर के थ्रू, और बाय डाउनलोडिंग द स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर व्हिच enables you to work on Scratch without an internet connection. जिससे आप स्क्रैच पर वर्क कर सकते हो एक इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी. सो टू स्टार्ट स्क्रैच प्रोग्रामिंग, टाइप स्क्रैच इन. तो आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, स्क्रैच टाइप करना पड़ता है. कहाँ पे, टाइप हियर सर्च बॉक्स में, एंड या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हो Scratch desktop ऑप्शन पे. A window with Scratch desktop in the title bar will appear. जो एक विंडो होगी जिसमें Scratch desktop होगा, वो आपकी टाइटल बार में अपीयर हो जाएगी. Now components of Scratch window. क्या क्या components होते हैं Scratch window के? This is the menu bar, this is the tab, these are the block menu, this is the go button, this is the title bar, this is the stop button, this is the script area, these are the block palette, this is the sprite, this is stage, and this is sprite list. So these are the components of Scratch. Now Scratch window has various parts and components that have different uses. इनके जो components होते हैं उनके different uses होते हैं for the software to work as a whole. Let's have a look at some of them. So first one is stage. Stage क्या है? Stage in Scratch is the area where sprites move. एक ऐसा एरिया जहाँ पे sprites move करते हैं. It is the primary working area of Scratch. क्या है, primary working area है आपके Scratch का, जहाँ पे आपके sprites move करते हैं. So sprites क्या है? They are the pictures that are programmed to perform different actions in a project. तो ये क्या है, पिक्चर्स होती है जो किस भी प्रोग्राम की जाती है परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एक्शंस आपके प्रोजेक्ट में. When you open Scratch, a cat sprite is selected by default. जब आप ओपन करते हो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट अपने स्क्रैच को, तो जो एक कैट स्प्राइट है ये डिफॉल्टली सिलेक्टेड होती है. यू कैन सेलेक्ट अनदर स्प्राइट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ स्प्राइट्स अवेलेबल इन द सॉफ्टवेयर. तो आप वैरायटी ऑफ स्प्राइट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके पास सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं अपने अकॉर्डिंगली. You can instruct a sprite to perform various actions such as move, jump, etc. आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो स्प्राइट को डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे मूव हो गया, जंपिंग हो गया. एंड ऑल्सो मॉडिफाई इट्स फिजिकल अपीयरेंस थ्रू वेरियस ब्लॉक्स प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर. आप इसकी फिजिकल अपीयरेंस को भी मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे आप अपने आजकल इन स्नैपचैट यू modify your avatar, and in your WhatsApp, on your Instagram you modify your avatar. Like in this you can modify your sprite also. Present in the software, various sound effects can also be added to the sprite as well. जो बहुत सारी sound effects होती है वो भी add हो जाती है sprite में आपके. Choose a sprite button. So the choose a sprite button is present in the bottom right corner at the bottom of the Scratch window. ये कहाँ पे present होता है, bottom right corner में present होता है आपकी Scratch window की. This is choose a sprite button. This button extends into a menu. ये extend हो जाता है menu में, which contains 4 more buttons. इसमें 4 more buttons होते हैं like paint, choose a sprite, surprise, and upload sprite button. So choose a sprite. As we have discussed before, Scratch has a variety of inbuilt sprites in its library. So variety of inbuilt sprites है उसकी library में. Clicking on choose a sprite button will open a library. अगर आप click करोगे sprite button पे तो आपकी choose करेगा sprite button. click करोगे आप और चूज अ स्प्राइट बटन पे, अब फिर वो आपके ओपन कर देगा आपकी लाइब्रेरी, जिसमें क्या कंसिस्टेंट होते हैं आपके
इनबिल्ट स्प्राइट्स होते हैं. चूज अ स्प्राइट फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इट विल अपीयर इन द स्टेज एरिया. वो आपकी स्टेज एरिया में अपीयर हो जाएंगे. Now let's talk about paint. This button will open the costumes tabs displaying the costumes window. ये costume tabs display करेगा जिसमें costumes की window होगी. You can use this to create a draw new sprite. आप use कर सकते हो create करने के लिए draw new sprite और make modification to an existing sprite. आप modifications भी कर सकते हो अपनी existing sprite में. Surprise button. Clicking on this button will add a random sprite. जब आप क्लिक करोगे इस बटन पे एकदम random sprite खुल जाएगी आपकी from the library as a new item. Each time it is clicked, it will add a new random item to the project. जैसे जैसे जितनी बार आप उसको क्लिक करोगे उतनी बार ही आपका new item ओपन कर देगा आपके प्रोजेक्ट में. Now upload sprite button. This button allows you to choose a sprite. इससे आप अपनी sprite को choose करते हो from existing scratch files in the computer system. Now cursor tool. These tools are situated on the top right corner of Scratch window. कहाँ पे situated होता है? Top right corner में situated होता है आपकी Scratch window के. There are 3 cursor tools. 3 cursor tools होते हैं. Full screen control. So full screen control है. When full screen control button is clicked, जब आप इस पे click करते हो, is the stage area expand in the entire computer screen. जो इसका stage area होता है पूरी computer screen में expand हो जाता है. To go back to normal Scratch window, click on full screen control. आप इस पे फिर से full screen control पे click कर दोगे, आप फिर से इस पे normal Scratch window पे चले जाओगे. It changes the size of sprite back to normal. ये आपकी sprite की size change कर देते normal में. Now increase script button. It increases the script area and decrease the stage area. ये आपके script area को increase कर देता है और decrease कर देता है आपके stage area को. Decrease script button. It brings the script area and stage एरिया बैक टू देयर नॉर्मल साइज. आपकी स्टेज और स्क्रिप्ट एरिया को नॉर्मल साइज में ले आता है एंड देयर साइज हैज बीन ऑल्टर्ड यूजिंग द इंक्रीज स्क्रिप्ट बटन. और इनका साइज ऑल्टर हो जाता है क्या यूज करके? इंक्रीज स्क्रिप्ट बटन को यूज करके. नाउ ब्लॉक्स पैलेट. द स्प्राइट इन स्क्रैच इज गिवन इंस्ट्रक्शन थ्रू ब्लॉक्स. इसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ब्लॉक्स के थ्रू. डिफरेंट ब्लॉक्स कम टुगेदर टू क्रिएट स्प्राइट. जो डिफरेंट ब्लॉक्स आते हैं वो एक साथ कम टुगेदर करते हैं क्रिएट करने के लिए स्क्रिप्ट्स को. Script. The block palette contains different blocks. जो block palette होता है उसमें different blocks होते हैं. With each block have a different function. और हर block का एक different function होता है. These blocks are divided into different categories. इनको different categories में divide करा गया है. Like in Scratch blocks menu. So these categories are motion, events, operational, looks, control, variables, sound, sensing, and my blocks. So we use block by dragging it using mouse. हम इसको यूज करते हैं, इसको ड्रैग करके माउस को यूज करके from block palette to the script area. block palette से ड्रैग करके आपको हम इसको script area में ले जाते हैं. The instruction associated with the block automatically becomes a part of the program. जो instruction associated होता है आपके block के साथ वो किसके automatically part बन जाते हैं? आपके part of program बन जाते हैं. Now script area. It is the place in Scratch software where blocks are placed. ये आपका place होता है Scratch सॉफ्टवेयर में जहाँ पे ब्लॉक्स प्लेस होते हैं टू एड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्प्राइट. ब्लॉक्स आर स्टैक टुगेदर टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट. इनको स्टैक किया जाता है एक साथ क्या क्रिएट करने के लिए? स्क्रिप्ट को क्रिएट करने के लिए. नाउ गो बटन. दिस बटन इज क्लिक्ड व्हेन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लॉक्स प्लेस्ड इन द स्क्रिप्ट एरिया टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्प्राइट. सो ये ब्लॉक बटन होता है, इनको क्लिक करा जाता है जब आपका जो आपका इंस्ट्रक्शन एरिया होता है ब्लॉक प्लेस्ड होता है आपका स्क्रिप्ट एरिया में, उसको एग्जीक्यूट करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्प्राइट पे. Now stop button. This button is situated along with the go button. Go button के साथ situated है. It is used to stop a program. इसलिए क्यों यूज होता है? प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए from being executed. Now motion block. Motion block button is the first block category in the block menu. First block category आपके block menu में. It can be recognized by dark blue colored circle with the text motion. इसको कैसे recognize करता है? डार्क ब्लू कलर्ड बटन कलर्ड सर्कल होता है आपके टेक्स्ट मोशन में, उसके साथ रिटर्न बिलो इट एज द नेम सजेस्ट मोशन. जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है मोशन ब्लॉक. इट इज यूज्ड टू ऐड मोशन टू द स्प्राइट लाइक रोटेटिंग. इससे क्या होता है? मोशन ऐड करते हैं अपनी स्प्राइट में, जैसे रोटेटिंग हो गया, मूविंग हो गया, ग्लाइडिंग हो गया. इन ऑर्डर टू चेंज द वैल्यू ऑफ ब्लॉक्स, मतलब वैल्यू ऑफ ब्लॉक्स को चेंज करने के लिए द कर्सर इज प्लेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग वैल्यू एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू वैल्यू. जो कर्सर होता है आपका प्लेस होता है आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यू पे और इसको रिप्लेस करते हैं न्यू वैल्यू पे. यू कैन फाइंड मोर ऑप्शन इन सम ऑफ द ब्लॉक्स. आप मोर ऑप्शन भी फाइंड कर सकते हो कुछ ब्लॉक्स में विच कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द ड्रॉप डाउन एरो. इसको कैसे एक्सेस करते हो? ड्रॉप डाउन एरो को यूज करके. नाउ फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ मोशन ब्लॉक. कुछ फीचर्स है. अब ये हमारे
motion block के. So first feature is movement of sprite. Now move steps instruction block in the motion block category moves a sprite by a specified number of steps. आपकी स्प्राइट को मूव करता है एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ, विच कैन बी चेंज्ड एज रिक्वायर्ड. उसको हम चेंज कर सकते हैं जैसे जैसे हमें रिक्वायर्ड होता है. इफ द स्प्राइट इज टू बी मूव बैकवर्ड, जैसे हमें बैकवर्ड मूव करनी है, पीछे की तरफ मूव करनी है, सो माइनस साइन इज प्रेफर्ड बिफोर द नंबर ऑफ स्टेप. माइनस साइन आपको लगाना पड़ता है नंबर ऑफ स्टेप्स से पहले. फॉर एग्जाम्पल मूव 15 स्टेप्स, सो मूव माइनस 15 स्टेप्स, तो 15 स्टेप्स पीछे चला जाएगा. नाउ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्प्राइट, the second feature जो हम चेंज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द स्प्राइट. द स्प्राइट कैन बी प्लेस्ड फेसिंग एनी डायरेक्शन. इसको फेस कर सकते हैं कैसे, कोई भी प्लेस कर सकते हो कोई भी डायरेक्शन फेस करके, बाय यूजिंग द पॉइंट इन डायरेक्शन एंड टर्न डिग्री ब्लॉक इंस्ट्रक्शंस. द नंबर ऑफ डिग्रीज द स्प्राइट हैज टू टर्न, जितने नंबर ऑफ डिग्री स्प्राइट को टर्न करनी पड़ेगी नीड्स टू बी, इतने हमें स्पेसिफाई करनी पड़ते हैं नंबर्स. सो द डायरेक्शन ऑफ स्प्राइट कैन चेंज क्लॉकवाइज. जो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज चेंज हो जाती है और एंटी क्लॉकवाइज भी चेंज हो जाती है जो ब्लॉक यूज करे उसके अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल पॉइंट इन डायरेक्शन टर्न 15 degrees, turn 15 degrees like this. Now moving sprite to a specific location, this is the third feature जो sprite को move करते हैं specific location पे. You can use x and y. हम x और y को यूज कर सकते हैं coordinates of a sprite to change its position to a specific location. जो अपनी पोजीशन को चेंज करता है अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे. जो x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्प्राइट के कैन बी चेक बाय क्लिकिंग ऑन इट. इसको हम चेक कर सकते हैं इन पे क्लिक करके, जैसे x पोजीशन है y पोजीशन ब्लॉक्स पे क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं ब्लॉक्स इन द मोशन कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल टू गो x minus 15 y 31. Now do you know x and y coordinates show the position of mouse pointer on the stage. जो पोजीशन होती है आपके माउस पॉइंटर की स्टेज पे उसको शो करते हैं. नाउ ग्लाइडिंग मूवमेंट्स क्या होते हैं? द ग्लाइड ब्लॉक्स इन द मोशन कैटेगरी इज यूज्ड टू मूव द स्प्राइट टू अ न्यू पोजीशन. जो ग्लाइड ब्लॉक्स होते हैं मोशन कैटेगरी में ये किस लिए यूज होता है? मूव करने के लिए आपकी स्प्राइट को एक न्यू पोजीशन पे फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. यू कैन एंटर द वैल्यूज एंड एग्जीक्यूट द ग्लाइडिंग मूवमेंट. आप एंटर कर सकते हो वैल्यू और एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने ग्लाइडिंग मूवमेंट्स को. फॉर एग्जाम्पल ग्लाइड 1 sections like sex to x minus 15 y 0. So using if on edge bounce, using if on edge bounce block in the motion category is used to prevent a sprite from hiding itself. Prevent करता है अपने स्प्राइट को अपने आप को हाइड करने से. इफ इट टचेस द एज ऑफ द स्क्रीन व्हाइल मूविंग, अगर उसने स्क्रीन एज टच कर लिया आपकी स्क्रीन का मूव करते हुए, द ब्लॉक चेक इफ द स्प्राइट इज टचिंग द एज. ब्लॉक चेक करता है कि आपकी स्प्राइट टच कर रही है जिसको या नहीं. इन दैट केस द स्प्राइट विल पॉइंट इन डायरेक्शन दैट मिरर्स. इस केस में क्या होता है, जो आपकी ब्लॉक स्प्राइट होती है वो पॉइंट करती है डायरेक्शन को दैट मिरर्स द ओरिजिनल पोजीशन, जो मिरर करती है ओरिजिनल पोजीशन को जिससे वो फ्रॉम विच इट इज कमिंग, जहां से वो आ रहा है. मेकिंग अ न्यू स्क्रिप्ट. Follow the given steps to start a new script on Scratch. When you start new Scratch, a new file is opened by default. जब आप start करते हो Scratch को तो आपकी new file आपकी open होती है default से. So to start a new script while Scratch is open, select the new option. आपको क्या select करना होता है? New options को select करना होता है file tab से. A new file will open the Scratch window. जो एक new file होगी आपकी Scratch window में open हो जाएगी. Select a sprite from the library or continue to work with the default cat sprite. आप select कर सकते हो अपनी sprite को अपनी library से और continue कर सकते हो अपनी जो आपकी default cat sprite है उसके साथ भी. Drag blocks from different categories of blocks and paste them after the other in the script area to create a script. जो blocks होते हैं आप drag कर सकते हो उनको और एक से बाद एक को place कर सकते हो उनके accordingly अपने script area में. When the script has been prepared, जब आपकी स्क्रिप्ट प्रिपेयर हो जाएगी आपको क्लिक करना है गो बटन पे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. The instructions on the block will be carried out according to the sequence. जो instructions होंगे वो आपके sequence के accordingly carried out होंगे in which they are placed. The sprite will perform according to the instruction. जो sprite होगी आपकी block instructions के according वो एक्शन परफॉर्म करेगी, इंस्ट्रक्शंस के साथ परफॉर्म करेगी. नाउ क्लिक ऑन द स्टॉप बटन व्हेन यू वांट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. आपको स्टॉप बटन पे क्लिक करना है जब आपको स्टॉप करना है एग्जीक्यूशन आपके प्रोग्राम का. नाउ सेविंग अ स्क्रिप्ट ऑन स्क्रैच. कैसे सेव करते हैं हम अपनी स्क्रिप्ट को अपनी स्क्रैच विंडो पे? इट इज एडवाइजेबल टू सेव योर स्क्रिप्ट ऑन कंप्यूटर बिफोर क्लोजिंग स्क्रैच. आपको सेव करनी चाहिए अपनी स्क्रिप्ट को स्क्रैच को क्लोज करने से पहले. To save a script, follow the given step. For the very first step you have to follow, you have to save to your computer option. Select करना है
save to your computer option from the file tab. So a save as dialog box will appear. जो आपका save as dialog box है वो appear हो जाएगा. Find a location where you want to save your file. आपको location find करनी चाहिए जहाँ पे आपको अपनी फाइल को सेव करना है. टाइप करना है आपको फाइल नेम एंड क्लिक करना है अपने सेव ऑप्शंस पे. Now that file is saved, you can open it anytime on your computer. आप कभी भी ओपन कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे. Accessing a previously saved scratch file कैसे एक्सेस करते हैं? You can open a previously saved scratch file on the computer. To open a saved scratch file, follow the given step. The very first step you have to do is this. Select करना है आपको load from your computer options, then present it जो है आपकी file tab में. The open dialog box will appear. जो आपका open dialog box है वो appear हो जाएगा. Browse and select the file you want to open and click on open. आपको browse करना select करना है फाइल को जिसको आपको open करना, फिर आपको click कर देना open पे. The selected file will open. जो आपकी selected file होगी वो open हो जाएगी. So that's all for your chapter. I hope you all like the explanation of this chapter. Thank you and have a wonderful day.